Like Vishwa. Okay. So these sensors are talking to, because first of all आपको पता है कि नेटवर्क कहते किसे. लेडीज एंड जेंटलमैन, उमर, नेटवर्क कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए. दो, जैसे मिसाल के तौर पे आप हमेशा करते रहते हैं कि आपके अपनी मोबाइल पे ब्लूटूथ को ऑन कर देते हैं और अपने दोस्त को भी कहते हैं कि ब्लूटूथ ऑन करो, और कुछ दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज an example of a network, very simple network, only two devices connected to one another, but it can be millions of devices interconnected with one another, or it can be the billion of devices interconnected with one another. So it can be as small as the two nodes, and it can be billion of nodes connected to one another. So अगर इसका साइज बहुत छोटा है तो this is the broad area network. If it is a few meters apart, near room है, for example, अब दो दोस्त अपने रूममेट हैं, आप बैठे होते हैं अपने एक दूसरे के पास और कहते हैं जी अपना लैपटॉप में ब्लूटूथ ऑन करो, ब्लूटूथ ऑन करते हैं एंड कनेक्ट. इसी तरह मिसाल के तौर पे आजकल आपके पास वायरलेस के माउस है. वायरलेस के माउस है. उमर, आप अपने माइक को बंद कर दें. ओके, थैंक यू. तो हम बात कर रहे हैं कि इन दिस केस दिस माउस इज टॉकिंग टू दी लैपटॉप. अब आप देखते हैं कि मेरे पास ये माउस काम कर रहा होता है एंड बाय द ब्लूटूथ इट इज कम्युनिकेटिंग विद दी लैपटॉप. So this is again an example of a personal area network. उसके बाद है local area network, which can be a wired network or it can be a wireless network. Wireless network. A wired network example is your Ethernet, for example. जैसे कि आप अपनी सिस्को लैब में चेक करते हैं, सिस्को एकेडमी में चेक करते हैं कि वहां पे मुख्तलिफ स्विचेस पड़े हुए हैं, and to these switches the devices are connected. Switch S1 might be connected to another switch S2, and devices are connected here, and devices are connected here. These are the intermediate devices. एक बहुत ही सादा एग्जाम्पल जिसे आप ये डिफाई कर सकते हैं कि इट इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस और इट इज ए एंड डिवाइस. एंड डिवाइस का एक ही इंट्रेंस होता है, एक ही इंटरफेस होती है, जबकि इंटरमीडिएट डिवाइसेस की टू और मोर देन टू इंटरफेसेस होती है. जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से इसको ये डेटा दे रहा है तो ये डेटा इसके जरिए इधर जा रहा है, तो कम से कम दो या दो से ज्यादा. दिस इज स्विच इज इंटरमीडिएट डिवाइस. So this becomes an example of an Ethernet local area network, which is a wired local area network, LAN. इसी तरह उमर, यहाँ पे it can be wireless. जैसे मिसाल के तौर पे majority of you and in my case as well, I'm connected to my access point. But I don't have any wires. I'm connected to the access router by using the air. So this becomes an example of Wi-Fi router. So this is a wireless LAN. Similarly, it can be a campus area network, because local area network covers a building probably, or a very adjacent buildings, maybe homes, for example, but mostly it may be a home or it may be a building at the most. But if there are multiple buildings, like we have in our campus UET, we have different departments which are interconnected with one another. So, or it might be multiple buildings, like we have a campus of Peshawar, where we have the Peshawar University, we have the Islamia, we have the agriculture, we have the forest, and blah blah. If all are connected to a network, you may call it a campus area network, which again may be wireless or wired. Then comes the metropolitan area network, a network which connects in a complete town, maybe Peshawar,
maybe Rawalpindi, Islamabad, Lahore, whatever. So this becomes an example of a metropolitan area network. Again, it can be wired or it can be wireless. The two good examples of the wireless are, might be you may have heard the name of V-Phone from PTCL. It was using the CDMA 2000 technology and was wireless. So it means you have a phone, you can move within the city, you may go to the university, you may go to the tent, you may go to the city, and you are connected. So this was an example of a metropolitan area network. Another example, maybe 20 years back, was by Wateen. Wateen is still a company in Pakistan, and the technology was WiMAX. WiMAX. It was again a MAN. And then comes the wide area net, which covers maybe the complete country, or maybe the complete continent, or maybe the whole world. This becomes an example of your wide area network. And wide area network can be, good example is internet. A good example of your wide area network is the internet, However, it can be other examples as well, like intranet or extranet. So these are the examples of your WAN. Does it make sense, ladies and gentlemen? Do we have any lady in the class today? Abdullah, Atif, Ishaq, Rohini. So there is not a single lady has joined us. Anyhow, so gentlemen, so this is the, here you can see a small home, a small network. It might be a small office, home office. Maybe you have 2 or 3 rooms and rented, and you have your office there. So all of your devices need to be interconnected with one another. So it becomes an example of your small office, home office, or it may be a medium to large network, like maybe a campus area network, or maybe a metropolitan area network. So this becomes an example of your medium to large networks, multiple buildings, multiple stories. And finally is your wide area network, which I explained to you. The examples, the good examples are the internet, intranet, and extranet. Do you have any question, ladies and gentlemen? Ishfaq, Atif, Kaisar, do you have any question? No, sir. Okay, so we continue. Okay, the question has been asked by Nurul Haq, and the question is, what is difference between internet, intranet, and extranet? So let me explain. A good question has been asked by the gentleman. He is asking about the difference between intranet, then is the extranet, and then is the internet. इंटरनेट तो है तो तीनों ही वाइड एरिया नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टार्ट लेता हूं इंटरनेट से, इंट्रानेट से, जो कि मे आई कॉल इट नंबर 1, number 1, number 2, and number 3. So what is intranet? Ladies and gentlemen, if you have an office in Islamabad, another office in UAE, Dubai, and the third office, for example, in Lisbon or in Madrid, Spain, for example. So you know that
and one in Australia as well. For example, Australia, yes. So you connect your these offices with maybe you have a head office in Islamabad and you have the branch offices in UAE, Australia, and Europe. Lisbon is in Europe. So I have taken 3 different continents, and these offices are interconnected with one another. So only these of people in these offices are interconnected with one another. This is an example of your intranet, number one. But if, which means you have the only your own employees can, it is a wide area network, but only your own employees can be connected. Then comes that, for example, it is the Siemens. This business is of the Siemens. Have you heard the name of Siemens or Cisco? Cisco, definitely you know. चलिए हम Cisco की एग्जांपल ले लें. अब सिस्को की में समझा या उसको पता है कि कई उसके वेंडर्स हैं, कई उसके प्रोवाइडर्स हैं जो उसके इक्विपमेंट इस्तेमाल करते, तो उसको उनको भी एक्सेस देनी चाहिए. So when you include these along with your own employees, you add others, but not all, only those who are related. For example, Cisco equipment is being used in PTCL. It is being used in Mobilink. It is being used in Ufone. So it has given access to this network to these clients as well, or to these service providers as well. So this network becomes extranet. And if you give the access to all, then it is the same internet is the same network, the wide area network is called the internet. Does it make sense to you now, Nurul Haq? The difference between the three is clear. Only the restrictions are there. Further, the technology is the same. Fair. Okay. So here we comes. This is the network of many sizes. Okay. But among all, our interest in this CCNA course is mostly about the local area network and wide area network. Local area network, because from the perspective of the professional, probably he's more interested in the, for example, if somebody is being hired by UET, so they want that the person should manage their local area networks in different departments, or the wide area networks, which where you are connecting, you are connecting to the rest of the world, and it need to be managed. So it is become or you become part of the PTCL tomorrow, or you become part of the Wateen, or you become part of the Nayatel. So all of them are managing the wide area network. So there is something in the chat. Let me see it first. Abdullah Burhan is asking extranet, sir, dobara samjha. Okay. So the question is being asked, gentlemen, कि extranet को दोबारा explain कर देंगे. जी, दोबारा उसी फिगर में मैं वापस आ गया. देखिए, मैंने ये कहा कि एक हमने एग्जांपल ले ली सिस्को. हमने कहा कि सिस्को की लेट करें पूरी दुनिया में 10 ऑफिस, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 ऑफिस हैं. उन 10 ऑफिस को हमने आपस में कनेक्ट करवा दिया. अब वो तमाम एम्प्लॉइज जो कि सिस्को से बिलोंग करते हैं वो इस रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो इस रिसोर्सेज तक नहीं जा सकता क्योंकि उसको इजाजत नहीं है. सिर्फ 10 ऑफिस जो उनके हैं दुनिया में, दे कैन बी कनेक्टेड टू दिस नेट. अब बाद में ख्याल आया कि सिस्को कहता है कि जी मैं कई चीजें दुनिया में बेचता हूं, मुख्तलिफ कंपनीज मेरी चीजें खरीदती हैं. मिसाल के तौर पे AT&T में क्या सिस्को के इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा? AT&T इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ सिस्को.
इसी तरह ब्रिटिश टेलीकॉम है, फ्रेंच टेलीकॉम है, और जर्मन टेलीकॉम है, पाकिस्तान टेलीकॉम है। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं। क्या वो सिस्को के इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं? क्या उनको इस नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहिए? आप कहते हैं हाँ जी, उनको भी बना दें। आप रिलेट करें कि उनको भी अपनी, या जो आपके सप्लायर्स हैं, आपको वो चीजें दे रहे हैं या आपसे ले रहे हैं, आप उनको भी इंक्लूड कर देते हैं। तो देन दिस बिकम्स अब्दुल्ला, दिस बिकम्स द एक्स्ट्रा। और अगर आप सबको दे दें ऑल, जैसे आप इंटरनेट है, आप सिस्को पे भी जाते हैं, आप सीमस पे भी जाते हैं, आप यूटी पे भी जाते हैं, आप ब्लूटूथ पे भी, आप यूट्यूब पे भी जाते हैं, फेसबुक पे, यानी ऑल। तो दिस बिकम्स द इंटरनेट। जी, आप समझ आ गई अब्दुल्ला? ओके, अगर समझ आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द टॉपिक हमने लिया कि हमारा जो इस वक्त टॉपिक है वो है अबाउट दी लोकल एयर नेटवर्क्स और वाइड एयर नेटवर्क्स। हम लाजमी तौर पे अगर हमारा दिल चाहा, हमने कई एडवांस कोर्सेज में जाके हम आईओटीज की बात करना चाहते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर सीम्स टू बी हेयर एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हेयर, लेकिन ये बताता चलूं कि कोई भी दूसरा कोर्स, चाहे वो आईओटी का लो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग का लो, चाहे क्लाउड सिक्योरिटी का लो, चाहे आईओटी सिक्योरिटी का लो, चाहे बिग डेटा का लो, नेटवर्क आना जरूरी है। बाद लोग फैंसी नेम्स के पीछे जाते हैं, बेसिक्स को नहीं नहीं देखते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो पहले बेसिक्स, फिर उसके ऊपर फैंसी काम, जितना दिल चाहे करो, इट विल गिव यू दी फ्रूट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए, यू कैन सी जी वी हैव थ्री ऑफिसेस, वन इज द सेंट्रल, वन इज द ब्रांच, एंड द अदर वन इज द होम ऑफिस। So these are the three are the local area networks, and these local area networks are connected to the maybe the service provider, which is being shown as the cloud, so which is a wide area network. So in this way, all of these LAN became part of the wide area network. तो याद रखें कि लोकल एरिया नेटवर्क का स्मॉल एरिया होता है, कम यूजर्स होते हैं, और इनको मोस्टली एक ही जो प्रोवाइडर है, जो इसका मालिक है, वो इसको मैनेज करता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके घर में एक लोकल एरिया नेटवर्क है, कल उसमें अगर कोई खराब होता है कुछ, कौन ठीक करेगा? आप करेंगे। और अगर उसमें कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, नया इक्विपमेंट आप लगाते हैं, कौन लगाएगा? आप खरीदोगे, आप लगाओगे। इस तरह के यूटी में हमारे डिपार्टमेंट में अगर हम कोई एक नया एक्सेस रूटर लगाना चाहते हैं, हम खरीदेंगे, हम लगाएंगे, हम मैनेज करेंगे। तो दैट इज दी लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मलकियत नहीं है ना, कुछ हिस्सा। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ, दैट इज स्ट्रॉन्ग फाइबर। स्ट्रॉन्ग फाइबर इज कनेक्टेड टू पीटीसीएल, पीटीसीएल कनेक्टेड टू इतिसलात एंड मेनी मोर। मतलब है कि हर एक का अपना अपना डोमेन है, लेकिन ओवरऑल एक वाइड एरिया नेटवर्क किसी एक कंपनी की मलकियत, या किसी एक मुल्क की मलकियत, या किसी एक कॉन्टिनेंट की मलकियत नहीं। ये हर एक का अलग अलग इसमें रोल है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? अब अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन दें, लैन को और वैन को, तो आपको पता है कि लैन जो है वो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को, अभी तक हमें ये समझ आ गई कि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जबकि वैन जो है वो एक वाइड जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे पूरा मुल्क, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका वगैरह, या पूरा दुनिया। दिस इज द वाइड एरिया। दैट द रीजन द नेटवर्क विच स्पैन दिस बिग एरिया, we will call it a wide area network. We will call it a wide area network. और अगर small को करता है तो we will call it a local area network. Now, if you look at the comparison,
So the first, the job of the local area network is interconnect end devices in a limited area. छोटे से एरिया में आप मुख्तलिफ, जैसे आपके घर में इस वक्त 8-10 डिवाइसेस हैं, आपने चाहे वो वायरलेस है चाहे वायर्ड है, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड ए लोकल एरिया नेटवर्क। जबकि बहुत से लैंड्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और वो लैंड्स वाइड जोग्राफिकल एरिया में पड़े होते हैं, एक में भी पाकिस्तान में है, दूसरा जो है वो हो सकता है दुबई में हो, तीसरा जो है वो लिस्बन में हो, चौथा जो है वो फ्रैंकफर्ट में हो, पांचवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो, छठा जो है वो कनाडा में हो, all of them interconnected with one another, so it becomes a wide area network. जैसे मैंने पहले कहा कि एक सिंगल जो लैन होता है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत होता है, जबकि वैन जो होता है वो मोर सर्विस प्रोवाइडर्स से मिलके बनता है। लैन में मोस्टली हाई स्पीड अवेलेबल होता है, मे बी 10 गी, मे बी 100 गी एंड सो ऑन, जबकि वैन में मोस्टली स्लोअर लिंक्स पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर तो कहीं पे 1 गीग के लिंक्स हैं, कहीं पे 100 मेगा के लिंक्स हैं, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है यूईटी, दैट इज कनेक्टेड टू ए स्लो लिंक व्हिच इज 480 मेगाबिट पर सेकेंड टू दी नया टैब। तो एज कंपेयर टू द इंटरनल नेटवर्क्स, द एक्सटर्नल WAN पार्ट इज slower. Okay. Then याद रखें कि अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क, स्पेशली इवन तमाम नेटवर्क्स, चाहे वो बॉडी एरिया नेटवर्क से लेके वाइड एरिया नेटवर्क तक जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए, ऑल ऑफ देम आर स्टैंडर्डाइज्ड। अब दो तरह होते हैं, एक को कहते हैं ओपन और एक को कहते हैं, ओपन का मतलब क्या होता है और ओपन का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये स्टैंडर्ड हर एक को पता है एंड एवरी वन कैन फॉलो इट, और एक होता है इसके मुकाबले में प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है ये किसी कंपनी का मलकियत है और दुनिया को इसके बारे में कोई पता नहीं है और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता उस कंपनी के अलावा। मिसाल के तौर पे अगर आपको दो एग्जांपल्स दूं, एक एग्जांपल विंडोज 10 की ले लें या विंडोज 11 की ले लें। विंडोज 10 किसका है? आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर इसमें कोई खामी है, इसमें कोई इन्हेंसमेंट करनी है, ओनली माइक्रोसॉफ्ट कैन डू। इस पे कोई दूसरी कंपनी मैक नहीं कर सकती, एप्पल नहीं कर सकती, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ओनली माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज विंडोज इज ए प्रोप्राइटरी टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इसके मुकाबले में लिनक्स है, इट्स ओपन, इसका मतलब किसी की मलकियत नहीं है, हर कोई इसके ऊपर काम करके इसको इंप्रूव कर सकता है, इसमें एनहेंसमेंट कर सकता है, तो दिस बिकम्स एन ओपन स्टैंडर्ड। तो याद रखें कि ऑल दी नेटवर्क्स जो हमारे all the type of networks which we have, they follow these standards and mostly they are the open standards. इसकी वजह फायदा क्या होता है, अगर ये स्टैंडर्ड ना होता तो मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपके पास यूएसबी भी होती है या सीडी होती है, डीवीडी होती है। अब आप किसी भी लैपटॉप में लगा लें, किसी भी डेस्कटॉप में लगा लें, किसी भी और किसी डिवाइस में लगा लें, इट वर्क्स। क्यों? ये स्टैंडर्ड है उसको, और ये स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज बनाती है। मिसाल के तौर पे IEEE बनाती है, मिसाल के तौर पे IETF बनाती है, ITU बनाती है, NC बनाती है, वगैरह वगैरह। ये तो इंटरनेशनल है, कुछ नेशनल भी होती हैं, रीजनल भी होती हैं स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज। जैसे मिसाल के तौर पे
यूरोप में बहुत ही मशहूर है, जिसने जीएसएम वगैरह पर काम किया। वो भी एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है। जिसने यूएमटीएस पे काम किया, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है। तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म की स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आईकैन है, आईएबी है। तो दीज आर दी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज विच प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स सो डैट, और फायदा क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या मतलब इंटरऑपरेबिलिटी का? यानी एक स्विच अगर आपने सिस्को का लिया, दूसरा सेट स्विच आपने हवावे का लिया, तीसरा आपने जूनिपर का लिया, नो प्रॉब्लम, दीज ऑल थ्री स्विचेस कैन बी इंटरकनेक्टेड वन अदर। अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो ना करते तो फिर सिस्को के लिए आपको सिस्को के स्विच के लिए सिस्को का राउटर ढूंढना पड़ता, सिस्को के राउटर के लिए सिस्को की फायरवॉल ढूंढनी पड़ती। लेकिन बिकॉज ऑफ दी स्टैंडर्ड्स ऐसी कोई हम पे इंटरऑपरेबिलिटी है। हम एक जिसका वेंडर चाहे, प्रोवाइडर चाहे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही, लेडीज जेंटलमैन? यस ओके, नाइस। यस ये वही टॉपिक जो मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले इंटरनेट, जो मैंने आपको वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने आपको इंटरनेट, जिसको नंबर 1 कहा था, एक्स्ट्रानेट और द इंटरनेट की एग्जांपल दी। मैंने कहा था कि अगर सिर्फ कंपनी के अंदर आपने नेटवर्क बना दिया, चाहे वो बहुत दूर दूर है, दुनिया के दो मुख्तलिफ हिस्सों में है, इट विल बी कॉल्ड एज द इंट्रानेट। लेकिन अगर आप उसी इंटरनेट के अंदर देखें ना, आपको नजर भी आ रहा है कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, और दिस इज द सुपरसेट ऑफ दिस। इसी तरह दिस इज द सुपरसेट ऑफ ऑल ऑफ दीज टू। तो अगर आपको वैन डायग्राम्स वगैरह मैथ्स का आइडिया है तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि उसी नेटवर्क के अंदर आपने, इंटरनेट के अंदर आपने अपने सप्लायर्स, अपने कस्टमर्स को भी, अपने कैलिब्रेटर्स को भी इजाजत दे दी, तो वी कॉल इट ए एक्स्ट्रा। और अगर आपने इसके अलावा सबको इजाजत दे दी, ऑल को इजाजत दे दी, तो इट विल बी टर्म्ड एज द इंटरनेट। ओके, देन इज दी, अच्छा एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है कि कल का पता नहीं कि कल ईद होती है या नहीं होती। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जी चाहे ईद होती है नहीं होती है, वी विल टेक क्लास टुमारो, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को तो हमारी क्लास होती है। लेकिन डेफिनेटली दिस ऑप्शन माइट नॉट बी, क्या अगर ईद होती है, हो सकता है ईद हो जाए, हो सकता है कि लास्ट रमजान का लास्ट डे हो जाए। दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, अगर ईद हो गई तो हम नई क्लास लेंगे, ऑफ कर देंगे, और अगर लास्ट डे ऑफ रमजान हुआ तो हम क्लास ले लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि मे भी ये भी हो सकता है कि किसी पार्ट में ईद हो और किसी में ना हो, तो फिर भी इशू बन सकता है। तो एक ऑप्शन ये बनता है कि हम कल, विच इज फ्राइडे, ऑफ कर दें, और इसकी जगह हम कमिंग ट्यूसडे, जो कि 25 अप्रैल आता है, इसके ऊपर, मतलब ये हो जाएगा ट्यूसडे, हम ये क्लास यहाँ पे ले लें और आगे फिर हम अपनी वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की क्लासेस कंटिन्यू कर दें। क्या ख्याल है? सर, ट्यूसडे को लास्ट छुट्टी है तो हमें ट्रैवल करना होगा ना पेशावर की तरफ, तो ये भी मसला है। चलो ये बताएं कि क्योंकि यहाँ पे अभी 10 लोग तकरीबन हैं, आप लोगों की कौन बता रहा था कि 25 को आपने पेशावर, जी। तो एक तो मुझे पूछना है आप लोगों से कि आप लोग क्या डिसाइड करके गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो वेनेसडे से ओपन हो जाएगी दोबारा। आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि यू विल बी बैक ऑन वेनेसडे, और यू विल बी एक्सटेंडिंग दीज अप टू द 2nd of May?
नहीं सर, वो वीक पहले भी ऑफ किया हुआ है, तो इसकी वजह से नेक्स्ट वीक हमें लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह वेडनेसडे से क्लासेस हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। ठीक है, वेडनेसडे से आप लोग क्लासेस में आएंगे। तो ट्यूसडे को आप कह रहे हैं कि ट्रैवल कहाँ से आप आ रहे हैं, आतिफ? सर एबटाबाद से। अहमदाबाद से। चलो फिर इस पे, तो कल के चले, पहले तो कल की डिसाइड करते हैं ना, उसके बाद फिर 25 के डिसाइड करते हैं कि क्या हम कल क्लास रखें, या कल हम, चाहे लास्ट रोजा है चाहे हफ्ता ईद है, ईद है फिर तो कंफर्म है ना, फिर तो कोई उस पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो सिर्फ रह जाता है कि अगर लास्ट डे, लेकिन इशू थोड़ा सा ये आता है, माइट भी पेशावर में ईद हो और अहमदाबाद में रोजा हो। पाकिस्तान में तो ऐसा, और केपी में तो ऐसा होता रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर ऑप्शन फिर एक यही है कि वीकेंड पे क्लास रख लें संडे को, क्योंकि अगर ईद हो तो फिर भी इधर उधर जाना होगा, तो वो भी मसला है। मसला है तो मतलब कि अगले वीक में कहीं पे इसको एडजस्ट कर लिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं नहीं सर, इसी संडे को अगर एडजस्ट कर लें तो नहीं हो सकता? आज के। मतलब अगर होता है तो फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर ये 3 दिन तो आप लोग नहीं, संडे तक फ्री हो सेलिब्रेशन में जाएंगे सर। बिजी होंगे। चलो इसको देख लेते हैं, लेकिन कल ऑफ है, इसका मतलब कम से कम ये श्योर हो गया। इज इट फाइन? यस सर, कल ऑफ कर लें। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपको ग्रुप के ऊपर तो हमारा मौजूद है, उसके ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे कि हम इस वीक की जो कमी है वो कैसे हम पूरी कर। एनी अब हम आते हैं लेडीज जेंटलमैन, अबाउट दी अब हम आते हैं अबाउट द इंटरनेट कनेक्शन। इससे मुराद क्या है? इस टॉपिक से मुराद ये है कि कोई भी यूजर है, चाहे वो, जैसे अभी हमने बात की, होम यूजर है, स्मॉल यूजर है, तो एक तरफ या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कि नहीं चले हम लिख लेते हैं स्मॉल, और एक तरफ लार्ज। लार्ज से मुराद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिसको हम इंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं या इंटरप्राइजेस भी कहते हैं, इंटरप्राइजेस। मिसाल के तौर पे आपकी यूईटी है, शाह यूनिवर्सिटी है, ये कोई भी दूसरा इदारा है। अब चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है, इट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। आज के दौर में इंटरनेट हैज बिकम सच ए आइटम, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं। हम बड़े आसान से कह सकते हैं इसके बगैर तो कोई भी चीज, चाहे एजुकेशन है, चाहे बिजनेस है, इकोनॉमी है, वट एवर, इंटरटेनमेंट है, वट एवर, इसके बगैर, इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये हुआ। और इंटरनेट किसके पास होता है? सर्विस प्रोवाइडर्स के पास होता है, आईएसपीज के पास होता है। सो वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज, it need to be connected to the service provider, and there is not a single service provider in the world. There are multiple providers. Some are small, some are large, but there are the service providers. So like for example, अगर हम देखें यहाँ पे, तो I am connected to the Nayatel. My neighbor is connected to the PTCL. Someone might be connected to Nayatel. Some might be connected to the Mobilink or Telenor, and so on. So, but all of these are the service providers. So whether it is large or small, they need to be connected to the service providers. They need to be connected to the service providers. So this is called access network. This network is called access network. And this access network, which is connecting any individual or a company or a home or a enterprise to the service provider, use different technologies. Different technologies depending upon their use. And this topic is about these technologies. कौन सी टेक्नोलॉजी सूट करती है स्मॉल वर्क को, और कौन सी टेक्नोलॉजी सूट करती हैं
as an access network to the large organizations, it means enterprises. So let's talk about them. जैसे देखें आपको यहाँ पे दिखाया दे रहा है कि you may consider it as service provider and service providers and different small or large organizations are connecting to this. Simple. For what purpose? We understand. For the purpose to get connected to the internet. अब अगर gentlemen ये small organizations, so what options you have? Number one, you may have a modem. जिसको कहते हैं dial-up modem. Dial-up modem. Then you may have ADSL, asymmetric digital subscriber line. Then you may have cable network for this purpose. You may have the optical network for this purpose. And if it is optical, it may be a passive optical network or it may be an active optical network. It may be your mobile data, mobile network. So these are some of the technologies, ladies and gentlemen, which are available for the small offices, small clients to connect to the service provider, And if it's a large organization, the enterprise, then Atif, it may use a lease line, which may also be called as point-to-point link or point-to-point line link. You may have the number two, business DSL, which is may called as SDSL or VDSL. You may have number three, the corporate Ethernet, which is also called as the Metro Ethernet. You may have number four, satellite. So these are a few technologies in the access part which connects the large organizations, like your UET is using number one, lease line. Yeah. UET is using the lease line. But you at home might be using this one or might be using this one. So this, आप घर में क्या इस्तेमाल कर रही हैं? आप इस वक्त डेफिनेटली इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और might be using this as well at your home. आप में से मुझे कौन बताएगा? Everyone should tell me कि आपके सामने कोई approximately 9 different technologies लिखी गई हैं. Which one you are using to be connected to the service provider? And the first chat is from Subhan. Subhan is saying ADSL. I mentioned this here. Anyone else? बुरहान ने कहा PTCL. PTCL is a service provider.
आप उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, उमर आपने लिखा मोबाइल डेटा, आई अंडरस्टैंड आपने, लेकिन अब्दुल्ला ने लिखा पीटीसीएल। पीटीसीएल सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसके साथ किस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, दैट यू मस्ट नो। इट मे बी ए डीएसएल, इट मे बी ए पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, इट मे बी एनी टेक्नोलॉजी, बट पीटीसीएल इज ए कंपनी नेम, नॉट द एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी नेम। ठीक है अब्दुल्ला? रोहिल इज सेइंग ADSL. Atif Rahman is saying PON, passive optical network. So, anyone else? Ashtaq is saying mobile data. Understandable. It might be 3G, might be 4G. So, कहने का मकसद ये कि जितने लोगों ने भी बताया, मेजॉरिटी, क्योंकि कोई भी इंटरप्राइज नहीं है, तो एवरीवन इज हियर। ये जो मैंने 5 लिखे हैं, बल्कि 6 लिखे हैं, इनमें ही, और the one which I am using is this one, passive optical network. There is something in the chat as well. Sir, which technology is used in UET? And Subhan, the answer I already gave, that in UET we are using a lease line of 480 megabit per second. Within our LANs, we are using the Ethernet plus the WLAN. We are using within the organization this one. But to connect these networks to the service provider, which in our case is the NATEL, we have a lease line having the bit rate of 480 megabit per second. Ji Subhan. Shabash. Is again something in the chat. Okay. So, इन टेक्नोलॉजीज को थोड़ा फर्दर डिटेल में हम देखना चाहते हैं कि ये क्या है। और यहाँ पे भी देखें, यही बात जो मोबाइल डेटा का, उसका मतलब सेलुलर, मैंने इसकी जगह लिख दिया था मोबाइल डेटा। यानी सेलुलर को सेलुलर क्यों कहते हैं, सवाल तो आप सब लोग करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये स्मॉल होम है, ये टेली वर्कर है, स्मॉल हो गया ये भी, और ये है एक स्मॉल घर है, तो इट इज कनेक्टेड टू ए DSL, और इट इज कनेक्टेड टू ए केबल, और इट इज कनेक्टेड टू ए सेलुलर विच इज वायरलेस, or it might be connected to a satellite, or it might be using the dial-up modem, dial-up connection, dial-up telephone. So these are some of the technologies which are used by a small office or home office or internet connection to the service provider. ठीक है? So ये जो आपको टेक्नोलॉजीज नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल केबल है, DSL है, सेलुलर है, सैटेलाइट है, दे आर मोस्टली कॉल्ड एज ब्रॉडबैंड। दिस इज नॉट द ब्रॉडबैंड, एंड दिस नो मोर यूज्ड एज वेल। ठीक है आतिफ? दिस इज इनएक्सपेंसिव, लो बैंडविड्थ ऑप्शन यूजिंग ए मॉडेम। तो इस पे फर्दर बात करूंगा, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि किस तरह स्मॉल ऑफिसेज कनेक्ट होते हैं और किस तरह लार्ज बिजनेसेस कनेक्ट होते हैं। मैंने भी कहा, यू मे हैव ए डेडिकेटेड लीज लाइन लाइक योर UET हैव, यू मे हैव द कॉर्पोरेट ईथरनेट, इसको मीट्रो ईथरनेट भी कहते हैं, यू मे हैव द DSL, SDSL और VDSL, और अगर आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, देन यू विल गो फॉर दिस सैटेलाइट बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड not a very high bandwidth also there, but
जब आपके पास ना ही केबल है, ना ऑप्टिक है, ना कोई ऐसे इलाके में आप चले गए वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, देयर यू मे हैव दी सैटेलाइट अवेलेबल फॉर यू। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आगे इसको हम लेके यहाँ से इसको आज के, लेकिन ये याद रखें कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देती हैं वो हायर बैंडविड्थ लेती है ना। अब मैंने अपने घर के लिए लिया हो तो 10 मेगाबिट पर सेकेंड, यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है तो 500 मेगाबिट पर सेकेंड, तो वो हायर बैंडविड्थ। और वो शेयर्ड पे नहीं जाते, डेडिकेटेड कनेक्शन पे जाना पसंद करते। मेरा कनेक्शन शेयर्ड है कि हुआ तो मिल जाएगा, ना हुआ तो खराब मिल जाएगा, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अलावा उनके पास क्या होता है, उनके पास मैनेज्ड सर्विसेज होती है। विल टॉक अबाउट दीज मैनेज्ड सर्विसेज। तो आई वेयर आई एम हियर 37। तो यहां से याद रखें कि नूरलाख तुम अपने पास नोट कर लिया करो। हम 37 स्लाइड ऑनवर्ड इंशाल्लाह विल बी discussing inshallah, and that will be during the next week. For today it seems enough. रमजान भी है, मैं इससे पहले भी 2 घंटे की क्लास ले चुका हूँ। सो I hope that it's enough, and I say Eid Mubarak to all of you in advance. और इंशाल्लाह ताला हम probably बता देंगे कि नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीक की है, चाहे प्रॉब्ली इट विल बी बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन। जो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे पाकि पेशावर, वो ऑनलाइन पे आ जाएंगे, और जो आ रहे हैं पेशावर वो फिजिकल पे मेरे साथ सिस्को लैब में इंशाल्लाह ताला, सिस्को लैब एकेडमी में हमारी नेक्स्ट क्लास होपफुली होनी चाहिए। टिल देन इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज कम अप, एंड इफ यू डोंट हैव then I may say Allah Hafiz to all of you and Eid Mubarak in advance. सर ये एक्टिव और पैसिव ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में जी बता दें क्या बिल्कुल डिफरेंस है। जी आतिफ, द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि मैंने दो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल की, और आपके घरों में जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, जिससे किसी ने लिखा अबाउट दी ऑप्टिकल नेटवर्क, तो दिस ऑल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। फर्क क्या है? फर्क ये है कि बाज जगहों पे आप डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो डिवाइसेस दो किस्म की होती है, एक होते हैं एक्टिव डिवाइसेस और एक होते हैं पैसिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस, एक्टिव डिवाइसेस वो होते हैं जिनको चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी है, अगर पेट्रोल नहीं है, या आजकल तो हाइब्रिड आ गई है, यानी कि उनमें डीसी नहीं है, तो इट डजंट वर्क। लेकिन बाज ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनको कोई पावर की जरूरत नहीं होती, हम कहते हैं ये पैसिव डिवाइसेस, ये पैसिव डिवाइसेस। तो जेंटलमैन, इसी तरह हमारे ऑप्टिकल नेटवर्क भी एक्टिव भी हैं और पैसिव भी हैं। अगर पैसिव है तो वी कॉल इट ऑन, और अगर एक्टिव है तो वी कॉल इट ऑन। अब फर्क क्या है? फर्क ये है जेंटलमैन कि आपको पता है कि लेट गिव मी अ मिनट में अगर एक डिवाइस देख सकूं, अगर मेरे पास नजदीक है तो अभी आपको क्लेरिफाई मिल जाएगा। ओके रोहिला अफरीदी, अभी आप वेट करें।
ओके, सो लेट्स डिस्कस इट नाउ जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूं विच इज दी ADSL रूटर, विच इज द ADSL रूटर। अब इसको चलाने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। जी, अब आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसको चलाने के लिए मुझे पावर देनी पड़ेगी। If this is an ADSL router. Now to run this ADSL router, Rohini, Atif, I need to give it power. So this is an active device. इसी तरह अगर आपके घरों में कहीं केबल नेटवर्क है और आपको कनेक्शन कमजोर है, तो हो सकता है कि आपने अपने घर में ये एम्पलीफायर लगाया हो, इसको भी आप देखो तो पावर देनी पड़ रही है। तो जो भी सिग्नल आ रहा है वो इसको एम्पलीफाई कर देगा। दिस अगेन इज एन एक्टिव डिवाइस। इसके मुकाबले में अगर आपके घर में ADSL है, जितना कि मुझे आप लोगों ने बताया, तो आपने देखा इसका एक इनपुट है और इसके दो आउटपुट्स हैं। एक इनपुट और दो आउटपुट्स, एक फोन पे चला जाता है और एक आपके DSL मोडेम पे चला जाता है। इसको कोई पावर देनी पड़ती? नो सर। नो। आतिफ, इट इज a passive device. It is called as splitter. What we call it? Splitter. स्प्लिटर। या अब यही काम हमारे ऑप्टिकल नेटवर्क्स में होता है कि हमारी जब ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल आता है, ऑप्टिकल सिग्नल आता है, तो हम यहाँ पे एक स्प्लिटर लगा लेते हैं। एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स हो गई। क्योंकि ये स्प्लिटर एक पैसिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है, इसलिए हम इसको कहते हैं, इस पूरे नेटवर्क का नाम हमने रख दिया पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। बात समझ आ रही? सर ये वाला स्प्लिटर कहाँ पे मौजूद होगा नेटवर्क में? ये स्प्लिटर जो, ओके, वेरी नाइस। आपने अगर आपके घर के आसपास कहीं ये पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क हो, और मेरे घर पे बिल्कुल दीवार के साथ ही लगा हुआ है, एक ऑप्टिकल फाइबर पीछे से आता है और आगे लट करेंगे 20 पोर्ट्स हैं, एक एक से वो निकाल के लेकर चले जाते हैं और घरों में ड्रॉप कर देते हैं। बिल्कुल यही बॉक्स किसी जगह पे उन्होंने लगाया हुआ है, आपके मोहल्ले में आसपास स्ट्रीट में कहीं लगा हुआ है। और ये आप मिसाल तौर पे ये मेरे घर में लगा दिया, ये मेरे नेबर के घर में लग गया, ये नेक्स्ट नेबर के घर लग गया, एंड सो ऑन। सो बेसिकली a single fiber is coming from the company, and then it is being splitted by the splitter into multiple connections. So because this is a passive device, this is called passive optical network. लेकिन अगर इसकी बजाय इस पैसिव डिवाइस की बजाय, स्प्लिटर की बजाय, यहां पे एक एक्टिव रूटर लगा दिया जाए, एक ऑप्टिकल रूटर लगा दिया जाए, विच इज द एक्टिव डिवाइस। रूटर है ना, रूटर तो लेगा, पावर लेगा, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज दी, यहां भी इनपुट एक है, लेकिन दैट इज बीन एम्पलीफाइड नाउ बिकॉज पावर आ गई है, ऑप्टिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर आपने दे दी है इस डिवाइस को, जिसने उस सिग्नल्स को मे बी ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, फिर उसको बाद उसको एम्पलीफाई किया, दोबारा ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके फिर लोगों की तरफ भिजवाया। नाउ इट कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस। एंड सुभान, दिस इज Ali Subhan, probably your complete name is, then it will be called as a active optical network. Ji gentlemen. Shabash. Is there any question? Here's something in the chat. Sir, can we have access to these slides? Yes. Who wrote? Yes. You are in Chennai. Very, very right. You have the access to these slides. Can we have access to these slides? I have missed classes and I want to get up to speed during off days. Yes. मैं अभी आपके लिए दोबारा ऑलरेडी जो आपके पुराने दोस्त हैं इनको प्रोवाइड की गई हुई है,
I send you within a minute. But let me know, Subhan, how you, because it was your first class, what is your feedback? Is it good or bad or average? If you rank from 1 to 5, how you will rank it? Where 1 means worst and 5 means best. नो रैंकिंग? ओके, थैंक यू। तो आपको क्लास खत्म हो तो अपने चेक करें, आपको इसका तमाम स्लाइड्स मिल जाती। जी, एनी अदर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? और ये स्मॉल डीएसएल और ये जो बिजनेस आपने डीएसएल बताया, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? एडीएसएल है और यूडीएसएल और यू एसडीएसएल। नहीं कहा, मैंने कहा SDSL और VDSL। वी, नॉट यू। यू लिखा हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, VDSL वेरी हाई स्पीड DSL, SDSL इज द सिमेट्रिक DSL और ADSL इज द एसिमेट्रिक DSL। मोस्टली इसमें फर्दर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। ADSL का मतलब ये होता है कि यूर अपलोड एंड डाउनलोड is not of the same speed, and that's the reason an ordinary user was happy with this scenario, because he has to upload a very less and has to download too big. सारा दिन डाउनलोडिंग करते रहते हैं, कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, कभी कहाँ, पूरे दिन में कहीं मुश्किल एक ईमेल हम करते हैं अपलोड होता है। अपलोडिंग, जैसे मिसाल के तौर पे कल मैं कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा था, and if I show you here, probably it was, yeah, I was downloading something from here, and just this one file was of 2.7 gigabytes, और अगर मैं इसका प्रोफेशनल वर्जन लेता तो इट वाज अराउंड 8 gigabytes, 8 gigabytes. So I have to download a lot. अपलोड कहाँ मैंने गीगाबाइट तो पूरे महीने में नहीं करता। सो ऑर्डिनरी यूजर का ये ट्रेंड था, और इसके लिए ADSL वाज, इसमें डाउनलोड वाज गुड एंड अपलोड वाज वेरी स्मॉल। तो एन ऑर्डिनरी यूजर हैव दिस नेचर, उसके लिए इट वाज अ गुड सोल्यूशन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्डिनरी यूजर बदल गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। जेंटलमैन, ओके, जेंटलमैन, कुछ टाइम पहले ये कोविड के दौरान किसी को भी पता नहीं था कि हमें क्लासेस के लिए जाना होगा ऑनलाइन, और हमें कहा गया कि जी आप लेक्चर रिकॉर्ड करें और फिर अपलोड करें स्टूडेंट्स की तरफ। अब वहां पे मुझे बहुत ज्यादा अपलोडिंग करनी पड़ती, एंड ADSL वाज नॉट सपोर्टिंग। पूरा दिन लग जाता था और एक लेक्चर ही अपलोड होता था, क्योंकि साथ साथ एक तरफ ADSL की खामी थी, दूसरा बाडा भी, कि आप एक काम अपलोडिंग हो रही होती थी, बिजी चली गई, सब कुछ दोबारा से फिर शुरू करो। तो कहने का मकसद ये हुआ कि, और ऑर्डिनरी यूजर का भी ये हो गया कि अब आप हर जगह पे अपनी वीडियो बनाते हो और कहते हो जी फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, और जो भी ट्विटर पे डालो, एंड ऑल ऑफ दिस सोशल मीडिया पे डालो। तो इस वजह से ये ADSL कमजोर पड़ गया। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मैं अभी यूटी में नहीं बैठा हुआ, अगर मैं आपको यूटी में करके दिखाता, इवन अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं कि यहां से आप अपने घर में भी कर सकते हैं स्पीड टेस्ट, तो यू विल फाइंड के हियर स्पीड टेस्ट एक तरफ साइबरनेट है, जो कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग फाइबर कहलाता है, और दूसरी तरफ ये अभी कोई सर्वर ढूंढ रहा है। जो ये ढूंढ लेता है तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं कि क्या आप कहना चाहते हैं
ISP। जी, साइबरनेट इज एन ISP, यस। अब यहां से अगर आप देखें तो मुझे अभी तक ऑप्टिकल्स और कोई दूसरा सर्वर नहीं मिला। जो ही मिलता है तो आई लेट यू नो। एंड आई से गो। जी, तो नयाटेल पिशावर, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद नयाटेल पिशावर, यू कैन गो टू फॉर एग्जांपल कराची स्ट्रॉम फाइबर एंड से गो। अभी ये आपको बता देगा जेंटलमैन, एक तरफ ये है और एक तरफ कराची है। सो आई एम गेटिंग अराउंड डाउनलोड ऑफ around 13, approximately 13-14 megabit per second. Not bad. And I'm getting again, along with this approximately 14 megabit per second, I'm getting an upload even somewhat more than that. तो ये ADSL की करेक्टरिस्टिक नहीं थी। वहां पे डाउनलोड तो हो सकता है आपको 14 मिल जाता, लेकिन अपलोड वाज नॉट मोर देन 1 megabit per second। तो वो एक ऑर्डिनरी यूजर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं बन रहा था। यू गॉट द आंसर? यस सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? No question? Meeting is about that. Okay, thank you very much, Ji. So see you inshallah after Eid. Till then, Allah Hafiz and Eid Mubarak in advance. Allah Hafiz. Allah Hafiz.